Hi Vaibhav, how are you? Vishal this side. Everyone, I am fine. Are you able to hear me? Yes, Vaibhav, crystal clear. Am I audible nicely? Yes, sir. And Great. happy Teachers Day, sir. Thank Thank you you so for much. organizing. Thank you for organizing on this wonderful day. Thank you so much. Thank you so much. Nice to hear that. It's really a wonderful feeling to be called as someone's teacher. Thank Yes, you. you are definitely a good one. Thank you. Thank you so much. I think we are going to wait for another 1 minute. People are joining in, but I will start on time because we have limited time on Zoom call as well. So we will start on time as well. I'm just waiting for another 30 seconds and allowing everybody to join in. Sure, sir. आप में से काफी लोगों ने पहले ज्वाइन किया हुआ है मेरा कॉल्स, लेकिन मैं मेरे वेबिनार्स पहले ज्वाइन किए हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी शेयर कर देता हूं। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में जनरली डेमोन्स्ट्रेट करता हूं या प्रेजेंटेशन देता हूं, बट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इफ आई मिस आउट ऑन ट्रांसलेटिंग एनीथिंग इन हिंदी और इंग्लिश, just feel free to let me know and I can repeat myself. At the end of the session, there will be a Q&A session, and also we will discuss any investment questions if you have. Just a small disclaimer, I am a chartered accountant. However, I am not registered with SEBI as an investment advisor. So please don't take my advice or my inputs as the final advice. Please connect and consult with your investment advisor if you want to have better insights about your investment decisions. However, I will try my best to give you the advice based on my experience, my knowledge, and it will be, of course, without any limitation of knowledge or that kind of information that I don't have about you, because I have not spoken to all of you. I don't know what your risk levels are, what your investment profiles are, etc. So please do consult with your investment advisor if at all you ask me any questions which are related to investment advice and I end up answering them. Please don't take them as the final answers before making your decisions. I think we will start with the discussion now. Thank you everyone for joining today's session. I will just start sharing my screen. Let me know when you're able to see my screen. Is my screen clearly visible to everyone? Can somebody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much. Thank you so much. So I will start. So देखिए, आज का जो सेमिनार मैंने ऑर्गेनाइज किया है या वेबिनार मैंने ऑर्गेनाइज किया है, उसका मेन टॉपिक ये है कि आप किस तरीके से ऑप्शंस के थ्रू अपनी पोजीशंस को, प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं लॉसेस को. Basically, how to use options for hedging your positions, both in favorable and unfavorable situations. That is what I will try to share with you. Option trading अपने आप में एक बहुत बड़ा subject है. It cannot be covered in a 40 minutes or a 1 hour session in one day, but I will surely try to share my inputs with you with reference to some of the quick ones which you can learn, and of course we can talk more about it on our WhatsApp group, and also in my next session I will share further insights about options trading. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. हमने लास्ट सेमिनार, जब हमने आज से 4-5 महीने पहले मैंने एक सेमिनार किया था, उसमें ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में जानकारी दी थी कि व्हाट इज ऑप्शंस ट्रेडिंग अबाउट. So what is options trading and what is options contract? An option contract is an agreement between a buyer and a seller that gives the purchaser of the option the right to buy or sell a particular asset at a later date at an agreed upon price. So जब आप ऑप्शन में बाय या सेलिंग करते हैं, तो बेसिकली यू आर ट्रेडिंग इनटू अ राइट टू बाय और राइट टू सेल. सो उस चीज को ध्यान में रखिएगा. हम आज जो सीख रहे हैं
जो अगले शायद और 3-4 सेशंस में सीखने वाले हैं, वो सब बाइंग द कॉल ऑप्शंस एंड बाइंग द पुट ऑप्शंस की स्ट्रेटजी सीखेंगे। सेल साइड की स्ट्रेटजीज में अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बिकॉज रिसेंटली सेबी ने नॉर्म्स चेंज किए हैं, रूल्स चेंज हुए हैं, और उसके बेसिस पर ह्यूज पेनल्टीज अप्लाई कर दी है अगर कोई बंदा नेकेड ऑप्शंस में पोजीशन क्रिएट करता है ऑन अ शॉर्ट साइड। Okay, so as a result, we will talk about only buying a call or buying a put. Call buy करके क्या कर सकते हैं, put buy करके क्या कर सकते हैं, आज उसको बात करेंगे अपन। ठीक है, तो आज का सेशन सिर्फ कॉल के ऊपर डिपेंडेंट होगा, पुट के सेशन को हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। कॉल को यूज करते हुए किस तरीके से हमारे प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं या हमारे लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। Let's continue. सबसे पहले याद करते हैं what is a call option. Call option is an option to buy an asset at an agreed price on or before a particular date. एक particular date पर हम एक, जैसे आपको मालूम है इंडिया में निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर कॉल एंड पुट ऑप्शंस जो हैं वो वीकली चलते हैं, लेकिन एक प्राइमरी जिसको बोला जाता है मास्टर एक्सपायरी, वो हर मंथ का लास्ट थर्सडे की एक एक्सपायरी होती है। उस दिन के कॉन्ट्रैक्ट को प्राइमरी एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है फॉर ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग स्टॉक्स। तो जब आप स्टॉक्स का कॉल या पुट बाय करते हैं तो जनरली वो थर्सडे, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ को होता है, लेकिन निफ्टी के केस में आपको वीकली एक्सपायरीज भी मिलती हैं। बट कॉल ऑप्शन क्या है? यू आर एग्रीइंग टू बाय समथिंग एट अ गिवन एग्रीड प्राइस ऑन और बिफोर अ पर्टिकुलर डेट। जब फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर आप 100 रुपए का कॉल ले रहे हैं किसी शेयर का, तो आप क्या कर रहे हैं, 100 रुपए पे उसको खरीदने का एक एग्रीमेंट कर रहे हैं। जो आपको कॉल बेच रहा है उससे बेसिकली आप ये एग्रीमेंट कर रहे हैं कि मैं इस शेयर को जब चाहूं इस तारीख के पहले, जो एक्सपायरी डेट होती है उस तारीख के पहले, मैं 100 रुपए में तुमसे खरीद सकता हूं। दैट इज बेसिकली अ कॉल ऑप्शन। और जब आप कॉल ऑप्शन कब बाय करते हैं, सिंपल सी बात, व्हेन डू यू बाय अ कॉल ऑप्शन? When you are expecting the price of the underlying stock or index to move up, जब आपको लग रहा है कि प्राइस ऊपर जा सकती है तो आप कॉल बाय करेंगे, क्योंकि आप कोई भी चीज को एक स्पेसिफिक रेट पे बाय करने के लिए एक एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि वो उसके ऊपर जाए, राइट? ट्रेडिंग फ्यूचर में उसके ऊपर हो ताकि आपको प्रॉफिट होना चालू हो जाए। ओके, in that condition you will buy a call option. Now let us try to understand कि हम call option को यूज करते हुए हमारी positions को कैसे hedge कर सकते हैं। That is the topic of today's discussion. First topic of today's discussion is how to hedge your positions, how to maximize your profits using call options. So let's go to the next slide. How to maximize your profits using buy call option. ठीक है, 2 स्लाइड्स बनाई हैं मैंने आपके लिए ताकि आपको दोनों चीज देखने को मिले कि कौन कौन सी सिचुएशंस में हम अपने आप को हेज कर सकते हैं यूजिंग अ कॉल ऑप्शन। पहले समझते हैं कि व्हेन, कैसी सिचुएशन में आपके लिए ये कॉल ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखें कि कॉल ऑप्शन बाय और सेल करने का आपको तभी सोचना चाहिए जब आपके पास सब्सटेंशियल होल्डिंग हो उस पर्टिकुलर शेयर की, या फिर आप अगर नेकेड बाय ऑप्शन कर रहे हैं तो फिर देन यू आर बाइंग समथिंग लाइक अ स्टॉक वेयर बाय यू आर एक्सपेक्टिंग कि आज मैंने 100 रुपए का कॉल खरीदा है, लेकिन मुझे लगता है कि 30 सितंबर तक ये इसकी रेट 120 रुपए हो जाएगी, इसलिए 100 रुपए का कॉल मैंने आज 5 रुपए या 7 रुपए में खरीद लिया। लेकिन अगर वो 120 रुपए हो जाता है 30 सितंबर तक तो मुझे 20 रुपए मिल जाएंगे। 7 रुपए में मैंने खरीदा है, 20 - 7 13 रुपए का मेरा प्रॉफिट हो जाएगा पर शेयर। एंड आपको जैसा याद होगा पिछले कॉल्स में हमने डिस्कस किया है, पिछले वेबिनार्स में हमने डिस्कस किया है, कॉल और पुट ऑप्शन में दोनों में मल्टीप्लाई किससे होगा? लॉट साइज से होगा। हर शेयर की एक लॉट साइज है, हर इंडेक्स का एक लॉट साइज है इन स्टॉक मार्केट, और वो लॉट साइज स्टॉक एक्सचेंज डिफाइन करता है।
और उस लॉट साइज से मल्टीप्लाई होकर आपका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होगा। सबसे पहले समझते हैं कि किस पहला ऑप्शन क्या कब है जब आप कॉल ऑप्शन यूज कर सकते हैं। लेट्स से कि आपके पास एक शेयर है जो आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, आपने किसी शेयर को लिया था, वो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है आप उसमें। अब वो इन्वेस्ट करने के बाद आपने जो सोचा था कि मुझे लगता है कि इस लेवल पे आएगा तो मैं इसका प्रॉफिट बुक कर लूंगा, आपने इन्वेस्ट करते समय ये सोचा था, तो आपकी पोजीशन लेट्स से कि उस स्टॉक के उस रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंच गई है या उस टारगेट लेवल पर पहुंच गई है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमने पिछले कॉल्स में डिस्कस किया है, पिछले वेबिनार्स में डिस्कस किया है। अगर आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट का मीनिंग नहीं मालूम है तो प्लीज आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं या फिर मेरे पुराने वेबिनार्स को मेरे से रिक्वेस्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। रेजिस्टेंस लेवल पे अगर कोई स्टॉक आ गया है और आपको लग रहा है कि प्रॉफिट तो मुझे हो रहा है, लेकिन you are unsure, you're not sure if exiting is the best choice as wider market is still rallying. आपको ये लगता है कि मार्केट अभी भी चल रहा है, मार्केट अभी भी बाइंग साइड में है, आपको लगता है कि ये स्टॉक और ऊपर जाएगा, लेकिन आपकी डिसिप्लिन ये कहती है कि आपने 100 रुपए पे खरीदा था, आपने ये सोचा था कि 115 अगर हो जाएगा तो मुझे 15% का फायदा हो रहा है, 15% रिटर्न मिल रहा है, आई शुड एग्जिट दैट स्टॉक। दैट वाज योर प्लान, बट अब आज की डेट में वो ऑलरेडी 116 हो गया है, 117 हो गया है। अब आप डर रहे हैं कि अब मैं एग्जिट करूं या नहीं करूं, प्रॉफिट बुक करूं या नहीं करूं, और मुझे तो ये भी लग रहा है कि कहीं ये शेयर कहीं अगले 10 दिन में 15 दिन में 120 या 125 में हो जाए, तो मुझे मेरा जो प्रॉफिट होने के चांसेस है मैं उसको लूज नहीं करना चाहता हूं। उस केस में आपको कॉल ऑप्शन बहुत सपोर्ट कर सकता है। किस तरीके से आप अपनी पोजीशन को हेज करेंगे, देखिए मैंने लिखा है, हाउ विल यू डू इट? You will do it by selling your stock position, and booking your profits as per your trading style. Okay, that means आप क्या कर रहे हैं, आप there are multiple people who are still joining in, so I'm just accepting them. I think some of you are joining just now. Thank you very much for joining. We are continuing with our session. We started dot on time. Thank you for joining. So, आप क्या करेंगे अपनी पोजीशंस को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए? आप still more people joining in. Okay. आप अपनी स्टॉक पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। स्टॉक पोजीशन को एग्जिट करने पर आपको आपने जितना प्रॉफिट अभी हो रहा है उतना प्रॉफिट बुक कर लिया, बिकॉज डिसिप्लिन आपने सुना होगा, हर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर से, ट्रेडर से जब भी कोई बंदा बात करता है, अगर उसने अच्छा पैसा बनाया है स्टॉक मार्केट में, तो उसने आपको एक चीज जरूर कही होगी कि स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है। अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो डिसिप्लिन बहुत जरूरत है। आप अपने इमोशंस के साथ ट्रेडिंग कभी नहीं कर सकते, कभी करना भी नहीं चाहिए। Okay, just give me a second please. I think there are few people who want to join but they have not been able to join in. Give me a second. I'm accepting them once again. Thank you. There are a few people who have just now joined in. We already started on dot on time, so thank you for joining once again. However, I'm continuing with what I was discussing with the existing participants. आप क्या करेंगे, स्टॉक को एग्जिट कर देंगे उस लेवल पर जिस लेवल पर आपने ओरिजिनल सोचा था कि मुझे टारगेट मेरा आ गया है, मुझे एग्जिट हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप अपनी पोजीशन को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप अपनी पोजीशन को मैक्सिमाइज करने के लिए एक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। ऐसा कॉल ऑप्शन जो कि अभी आउट ऑफ द मनी चल रहा हो। फॉर एग्जांपल 100 रुपए का शेयर था, आपने 115 के टारगेट के लिए खरीदा था, 116 का रेट आ गया है, आपके हिसाब से टारगेट अचीव हो गया है, आपको एग्जिट हो जाना चाहिए। आपकी डिसिप्लिन आपको ये कहती है कि एग्जिट हो जाना चाहिए, लेकिन अभी मार्केट अप ट्रेंड में है, आपको लग रहा है कि ये 100 का 115 हो गया है, मुझे लगता है कि 120 और 125 भी हो जाएगा कहीं, और 120 125 हो जाएगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं जल्दी एग्जिट हो जाऊंगा। बिल्कुल, जल्दी एग्जिट करना भी एक अच्छी चॉइस नहीं होती है स्टॉक मार्केट में। इफ यू आर इनटू द राइट स्टॉक, यू शुड नॉट एग्जिट वेरी अर्ली, यू शुड एग्जिट इट एट राइट टाइम एंड एज पर योर डिसिप्लिन। आपका डिसिप्लिन कहता है कि 15% का रिटर्न आ गया है, आपको एग्जिट कर लेना चाहिए।
तो एग्जिट कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन आप चाहें तो अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं बाय बाइंग अ कॉल ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन। अगर आप बाय करेंगे तो क्या होगा, एक जैसे अभी मैं जो एग्जांपल दे रहा था उसमें 116 का रेट चल रहा है, आपको लग रहा है कि 120 और 125 भी हो सकता है ये शेयर, तो आप 120 रुपए का कॉल खरीद लीजिए। हो सकता है कुछ रुपए में आएगा, 4 या 5 रुपए आपको देने पड़ेंगे, लेकिन आपको क्या होगा, 120 के ऊपर अगर वो शेयर जाता है तो उसका कंटिन्यूअस प्रॉफिट आपको मिलता जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें इस पोजीशन में थोड़ा सा आपको कम प्रॉफिट होगा एज कंपेयर टू योर नॉर्मल पोजीशन, जहां पे आप शायद ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे होते। अगर आप सिर्फ पोजीशन को कंटिन्यू रखते और एग्जिट नहीं होते, लेकिन उसमें एक नुकसान है कि अगर आपने शेयर को एग्जिट नहीं किया और मार्केट में डाउनफॉल आना चालू हो गया, आपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया, आपने 15% का टारगेट अचीव किया था लेकिन आपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया, आपने सोचा 120 हो या 125 हो जाएगा, ग्रीडीनेस के कारण आप कंटिन्यू रहे उस पोजीशन में, अनफॉर्चुनेटली वो स्टॉक अगले ही दिन या अगले 10 दिनों में वापस से रिट्रीट करके, जैसे मैं बोल रहा था यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पे था स्टॉक, तो रेजिस्टेंस लेवल से रिट्रीट करके वो शेयर वापस से रिट्रीट हो गया, नीचे की तरफ आ गया, तो आपको हो सकता है 116 का शेयर 110 रुपए हो जाए वापस, आपका प्रॉफिट में नुकसान हो गया है, राइट। उस पोजीशन को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्टॉक से एग्जिट हो जाएं, अपनी डिसिप्लिन को फॉलो करें और कॉल ऑप्शन को खरीद सकते हैं। एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पे और उसको मैं आपको मैथमेटिकली एक्सप्लेन भी करूंगा कि किस तरीके से ये स्ट्रेटजी आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है। देखिए एग्जांपल में मैंने लिखा है कि यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन निफ्टी एट 16,000 लेवल्स। आपने 16,000 पे निफ्टी खरीदी थी, लेट्स अज्यूम। आपने सोचा था 2 महीने में 3 महीने में निफ्टी 17,000 हो जाएगी, लेकिन 16 ही दिन में निफ्टी आज 17,000 से भी ऊपर आ चुकी है, राइट। It is the fastest 1,000 points gain in Nifty in recent past. आज तक पिछले 20 सालों में सबसे पहले 1,000 पॉइंट जो पहुंची है निफ्टी कवर की है, वो इस बार करी है। 16,000 से 17,000 होने में निफ्टी को 13 या 14 सेशंस लगे हैं, सॉरी मैं भूल गया हूं एग्जैक्ट कितने सेशंस लगे हैं। आज की डेट में निफ्टी ऑलरेडी 17,300 चल रही है। आपने जब खरीदी थी निफ्टी तो आपने सोचा था कि 17,000 के टारगेट के लिए मैं खरीद रहा हूं निफ्टी, और आपने अभी प्रॉफिट बुक नहीं किया क्योंकि अगले ही दिन जिस दिन आपने 17,000 का टारगेट सोचा था उसी दिन निफ्टी 17,300 भी हो गई, राइट। बढ़ती चलेगी एंड निफ्टी इज ऑलरेडी ट्रेडिंग अबाउट 17,000 लेवल्स। व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट कर दें 17,300 लेवल्स पे, आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए एंड आप उसी लेवल पे अपना एक 17,400 का कॉल खरीद सकते हैं। 17,400 का कॉल आज की डेट में, मैं लाइव रेट बता रहा हूं आपको, करंट मार्केट प्राइस इसकी 189 रुपीज है। 190 रुपए में आपको 17,400 का कॉल ऑप्शन मिल जाएगा। ध्यान दें निफ्टी का 75 शेयर्स का लॉट होता है, निफ्टी 75 का लॉट साइज के साथ ट्रेड करती है, तो 190 इंटू 75 आपके पैसे लग जाएंगे। लेकिन देखिए आपको क्या मिल रहा है, आपने 16,000 पे खरीदी थी, 17,000 आपका टारगेट था, ऑलरेडी 17,300 चल रही है। आपको लगता है कि निफ्टी और ऊपर जा सकती है, लेकिन आपको यह भी लग रहा है कि 17,000 मेरा टारगेट था, मेरी डिसिप्लिन कहती है कि मुझे एग्जिट हो जाना चाहिए, तो मैं क्यों एग्जिट ना हूं, राइट। तो आप क्या करना चाहिए, आपको 17,300 पे एग्जिट हुई है, बिल्कुल अपने डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए। मैं फिर बोल रहा हूं, स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर ट्रेडर हैं तो खासकर ट्रेडर के लिए तो डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो ऑलरेडी डिसिप्लिन में है क्योंकि वो कभी अपने शेयर को देख ही नहीं रहे हैं, लंबे समय के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। जल्दीबाजी में कभी शेयर्स को एग्जिट ना करें। अब देखें इस पोजीशन में होगा क्या, इस पोजीशन में ये होगा कि अगर निफ्टी यहां से ऊपर जाती है और कंटिन्यूअस अप ट्रेंड पे रहती है तो आपको ऊपर जाने के कारण जो प्रॉफिट होना चाहिए वो प्रॉफिट मिलता रहेगा, क्योंकि आपने 17,400 का कॉल खरीदा है। 17,400 के जितने ऊपर ये निफ्टी जाएगी उतना आपको प्रॉफिट मिलता जाएगा, लेकिन आपका 189 रुपीज कॉस्ट काटने के बाद, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के रूप में हम एक्सेल फाइल पे समझते हैं। मैंने आपके लिए एक छोटी सी एक्सेल फाइल बनाई है जिसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि किस तरीके से ये आपको प्रॉफिट स्ट्रेटजी दिला सकती है।
जब आपको मेरी एक्सेल फाइल दिख जाए तो प्लीज वन ऑफ यू रेज योर हैंड और जस्ट कंफर्म टू मी बाय एनेबलिंग योर ऑडियो प्लीज। एक्सेल इज विजिबल सर, दिख रही है सर एक्सेल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो देखिए निफ्टी का अपन ने एग्जांपल ले रहे हैं, ये वही चीज ली है जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही थी थोड़ी देर पहले, पीपीटी मर 75 शेयर्स की निफ्टी होती है, आपने 16,000 पे ली थी। आप, मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि 17,300 हो गई है और आपके पास ऑलरेडी 1,300 रुपए का प्रॉफिट आज की डेट में हो रहा है पर शेयर। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास दो चॉइस हैं। एक पहला चॉइस कि आप डिसिप्लिन फॉलो करें, सिनेरियो 1 में 17,000 पे 17,300 पे निफ्टी एग्जिट कर जाएं, वो तो आपके पास चॉइस है ही, आपका टारगेट हिट हो गया है, आप 97,500 को बुक कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, दूसरा ऑप्शन आपके पास दो सिनेरियो है। अगर आज आपने ये कॉल, अगर आज आपने ये सेमिनार, मेरा वेबिनार अटेंड नहीं किया होता तो जनरली आप क्या करते हैं, आपको ये लगता है कि मार्केट और ऊपर जाएगा तो आप निफ्टी कंटिन्यू करेंगे इसको होल्ड करने के लिए। 17,000 16,000 की निफ्टी है, 17,300 चल रही है, आपको लगता है कि 17,800 ना हो जाए अगले 5-6 दिनों में, आप इसको कंटिन्यू होल्ड करना चाहते हैं, बिल्कुल आप ये कर सकते हैं। लेकिन देखिए उस केस में क्या होगा, अगर आपने इस पोजीशन को कंटिन्यू रखा होल्ड करके विदाउट हेजिंग इट या विदाउट एग्जिटिंग, तो क्या हो सकता है, अगर निफ्टी नीचे की तरफ जाती है, नीचे गिरना चालू हो जाती है, आज की डेट में आपको 97,500 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि 17,300 माइनस 16,000, 1,300 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है 75 से, 1300 मल्टीप्लाइड बाय 75 इज 97,500। आपको ऑलरेडी आज 97,500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन नहीं, आपकी इच्छा थी कि नहीं ये शेयर और बढ़ सकता है, तो आपने 17,800 की ख्वाहिश के लिए इस शेयर में इन्वेस्ट करे रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली निफ्टी गिरकर 17,000 हो जाती है। लेट्स अज्यूम कोई छोटा सा करेक्शन आता है मार्केट में, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आजकल मार्जिन भी बढ़ गई है, एट द सेम टाइम आपको M2M सेम डे देना होता है। तो 17,000 जैसे ही निफ्टी होगी, आपका प्रॉफिट घटकर 97,500 से 75,000 हो जाएगा। अगर वही निफ्टी अगले दिन घट के 16,500 जाती है तो आपका प्रॉफिट घट के 37,500 हो जाएगा। और अगर 16,000 हो जाती है तो आपने 16,000 पे खरीदी थी, 16,000 फिर से हो गई, आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा, बस आपका ब्रोकरेज का कॉस्ट होगी जो आपकी लग जाएगी। लेकिन हाँ, ऊपर जाएगी तो आपको ये हायर प्रॉफिट्स होते चले जाएंगे। ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन क्या है जो मैं आज आपको सिखा रहा हूं। आप क्या कर सकते हैं कि निफ्टी के साथ साथ, निफ्टी बेचने के साथ साथ निफ्टी का कॉल खरीद सकते हैं 17,400 का। 17,400 का कॉल आपने 189 रुपीस में खरीदा, तो 189 मल्टीप्लाइड बाय 75, आपकी टोटल कॉस्ट हो गई 14,175 रुपए। इसमें ब्रोकरेज मैंने ऐड नहीं की है। अगर आपको ब्रोकरेज लगती होगी जिस कंपनी से, जो भी जहां से भी आप ट्रेड करते हैं, उतनी ब्रोकरेज आपको देनी पड़ेगी। अभी विदाउट ब्रोकरेज कैलकुलेशन किया है, सबकी ब्रोकरेज अलग अलग हो सकते हैं इसलिए। तो 14,175 रुपए देके आप अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रख सकते हैं ऑन अ अपसाइड मूवमेंट। क्यों? क्योंकि आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि मार्केट रैली मोड में है, मार्केट ऊपर जा सकता है, जिस शेयर में आप इन्वेस्टेड हैं वो कंटिन्यू और ऊपर गया तो कहीं आपको नुकसान ना हो जाए, राइट? तो आप 17,400 का कॉल खरीद लीजिए। देखिए फिर क्या होगा। अगर आपने 17,400 का कॉल खरीदा 189 रुपीस में, तो दो सिचुएशन होंगी आपके पास। पहली बात, आपने निफ्टी से एग्जिट कर दिया, आपने निफ्टी से ऑलरेडी एग्जिट कर दिया है, तो आपका ये प्रॉफिट आपने बुक कर लिया है। 97,500 जो आपको 17,300 की रेट पे अभी आपको प्रॉफिट मिल रहा था, वो आपने बुक कर लिया है, क्योंकि आपने 16,000 पे खरीदी थी, 17,300 पे बेच दी, 97,500 आप फिक्स्ड प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। अब आपका प्रॉफिट कोई कम नहीं कर सकता। लेकिन आपने 14,000 रुपए, उस प्रॉफिट में से 14,000 रुपए की आपने कॉल भी खरीद लिया 189 रुपीस के लिए, 17,400 का कॉल ऑप्शन। अब लेट्स अज्यूम कि निफ्टी अगले 20 दिनों में 18,000 हो जाती है, तो क्या होगा? 18,000 होने पर आपने निफ्टी तो एग्जिट कर दी थी, इसलिए आपको 97,500 जो प्रॉफिट वो था वो तो आपको फिक्स हो गया आपका। लेकिन आपको प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा
अपने कॉल ऑप्शन पर आपने 17,400 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदा था, तो आपको 18,000 की निफ्टी होने के कारण वो रेट 600 रुपए आपको मिलेंगे। ये जो कॉल ऑप्शन आपने 189 रुपीज में खरीदा था, ये अगर 18,000 निफ्टी हो जाती है तो उसका मार्केट प्राइस हो जाएगा 600 रुपए। और वो 600 रुपए अगर आप माइनस करते हैं 189 में से, तो आपको 411 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट होगा, जो कि यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है 30,825 रुपए। तो आपने क्या किया, आपने अपनी डिसिप्लिन फॉलो करी। आपका टारगेट था 17,300 पे आपने एग्जिट कर दी, बिकॉज ऑलरेडी आपके टारगेट से ऊपर चल रही है। आपने अपना डिसिप्लिन फॉलो करते हुए अपनी पोजीशन को ऊपर के लिए हैज कर लिया। ये देखिए, ये ऊपर जाते जाते ये शेयर्स आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता जाएगा। अगर नहीं मिला तो आपका मिनिमम प्रॉफिट कितना हो गया, 97,500 माइनस 14,175, जो कि आपने कॉल को खरीदने में पैसा खर्च किया, वो आपके प्रॉफिट में से घटेगा। तो वो आपका टोटल प्रॉफिट हुआ 83,325। अब अगर निफ्टी कल को अगले दिन गिरकर 5,000 भी हो जाए, निफ्टी एक दिन में गिरकर 5,000 भी हो जाए, तो भी ये आपको 83,525 का प्रॉफिट होगा ही होगा। ये जो आपको प्रॉफिट यहां स्क्रीन पर दिख रहा है, वो 83,525 का प्रॉफिट होगा ही होगा। ठीक है, इसलिए कई बार अपनी पोजीशंस को हेज करना एक बेटर ऑप्शन होता है, डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए। मैं वापस से पीपीटी स्लाइड पर आ गया हूं। आई होप आप सबको पीपीटी स्लाइड फिर से दिखना चालू हो गई होगी। प्लीज कोई कंफर्म कर दीजिए मुझे कि आपको पीपीटी स्लाइड्स दिखना चालू हो गई है। दिख रही है सर। थैंक यू सो मच। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। नेक्स्ट जो है, अगेन मैं जैसा आपको बता रहा था, आज का जो डिस्कशन है सिर्फ और सिर्फ कॉल ऑप्शन को यूज करके कैसे आप अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज या लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं, ये सिखा रहा हूं मैं। आज पुट ऑप्शन के ऊपर बात नहीं करेंगे, ठीक है। आज सिर्फ कॉल ऑप्शन को कैसे यूज करते हुए हम प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं वो समझेंगे। सो देखिए, दूसरी पोजीशन क्या हो सकती है? दूसरी पोजीशन ये हो सकती है कि आपकी लॉन्ग पोजीशन की जगह शॉर्ट पोजीशन हो किसी शेयर में, राइट। आपने लॉन्ग नहीं कर रखा है, शॉर्ट कर रखा है। आपने किसी शेयर में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रखी है, शेयर बेच दिया था आपने या तो पास्ट में, या फिर आपने फ्रेश फ्यूचर में शॉर्ट किया हुआ है। यू ऑलरेडी हैव अ शॉर्ट पोजीशन इन स्टॉक फ्यूचर, your position is also reaching to your support level or your target। शॉर्ट करने के बाद आपके टारगेट पर भी आ गई है, आपने जो सोचा था उस टारगेट पर आ गई है वो पोजीशन, बट you are not sure if exiting is the best choice, as you feel you can get more profits but you don't want to lose on any upside swing seen in the stock or future। आप क्या चाह रहे हैं? आप ये चाह रहे हैं कि भैया मैंने शॉर्ट किया था, शॉर्ट करने के बाद नीचे मेरे टारगेट पे भी आ गया शेयर, बहुत अच्छा, मैं ये प्रॉफिट बुक करना चाहता हूं, ठीक है। आप प्रॉफिट बुक करने के साथ साथ ये भी चाहते हैं कि मैं फ्रेश पोजीशन तो नहीं क्रिएट करना चाहता, मैं नया शेयर्स तो नहीं खरीदना चाहता, लेकिन आपको लगता है कि रेजिस्टेंस, ये जो स्टॉक है ये सपोर्ट लेवल पे है, इसलिए यहां से ये बाउंस बैक कर सकता है। तो आप क्या करेंगे? आप अपने कॉल को और खरीद लेंगे, आप अपनी पोजीशंस को मिनिमाइज कर देंगे, ठीक है। लॉसेस की पोजीशंस को मिनिमाइज करेंगे। आप कैसे करेंगे उसको मिनिमाइज? देखिए, आज की रेट में आपने शॉर्ट किया हुआ है, ऑलरेडी इन ट्रेंड चल रहा है, तो आप कंटिन्यू करेंगे अपनी शॉर्ट पोजीशन को। लेट्स अज्यूम कि आप कंटिन्यू करते हैं अपनी शॉर्ट पोजीशन को, लेकिन शॉर्ट पोजीशन को कंटिन्यू करते करते आपको ये भी लगता है कि अब अगर ये बढ़ गया शेयर, अगर इस शेयर की रेट बढ़ गई तो मुझे लॉस होना चालू हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो लॉस मेरा मिनिमाइज हो जाए। वो लॉस अगर आपको मिनिमाइज करना है तो आप कैसे उसको मिनिमाइज करेंगे, उसको मैंने यहाँ पे स्ट्रेटेजी के रूप में समझाया है आपको, यूजिंग अ कॉल ऑप्शन। देखिए, ये चीज आप पुट ऑप्शन के तरीके से भी कर सकते हैं, ऑपोजिट तरीके में, ठीक है, लेकिन वो अभी हम नहीं सीख रहे हैं। आज का सेशन सिर्फ कॉल ऑप्शन को बाय करते हुए किस तरीके से आप अपनी हेजिंग करेंगे वो हम सिखा रहे हैं, ठीक है। So you will continue with your short position। आपने शॉर्ट किया हुआ है, आप शॉर्ट रहेंगे, लेकिन अगर आपकी पोजीशन ऊपर की तरफ जाना चालू हो जाती है स्टॉक की,
तो आप चाहेंगे कि अपने आप को सेफगार्ड करके रखें। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैंने 17,500 पे लेट्स अज्यूम कि आपने निफ्टी 17,500 पे शॉर्ट की थी। ध्यान दें, मैंने ये थियोरेटिकल एग्जांपल दिया है। निफ्टी अभी तक 17,500 के लेवल को छुई नहीं है, लेकिन लेट्स अज्यूम कि आप इसको कोई और दूसरा शेयर भी मान सकते हैं। निफ्टी लेट्स से आपने 17,500 पे शॉर्ट की थी और आज की डेट में 17,300 हो गई है। ये 17,300 आज का रेट है, और आपका टारगेट भी 17,300 ही था। आपने जब 17,500 बेचा था तो आपका टारगेट था कि 17,300 में मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रख सकते हैं होल्डिंग के लिए, लेकिन आप अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर आप ऊपर की तरफ ये निफ्टी फिर से जाना चालू हो जाती है तो आपको लॉस होगा, राइट, क्योंकि आपने शॉर्ट किया हुआ है, और निफ्टी अगर बढ़ती है तो आपको लॉस होगा, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, निफ्टी के कॉल को बाय कर सकते हैं, 17,400 के या 17,500 के कॉल को बाय कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में मैंने 17,400 का कॉल बोला है, उसको आप बाय करेंगे 189 रुपीज में। तो क्या हुआ, आप देखिए आपने क्या किया, 17,500 माइनस 17,300, आपका टोटल प्रॉफिट हो रहा था 200 रुपया। 200 में से आपने 189 रुपीज का एक नया कॉल ले लिया, ये आपके जेब में से पैसा चले जाएगा, ठीक है, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन निफ्टी अगर और गिरती है, अगर निफ्टी 17,000 हो जाती है, 16,000 हो जाती है, 16,500 हो जाती है, तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, आपको फ्यूचर वाली पोजीशन कंटिन्यू प्रॉफिट देती जाएगी, क्योंकि आपने अपनी फ्यूचर की पोजीशन को खत्म नहीं किया है, ठीक है। आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को होल्ड करके रखे हैं। लेकिन अगर निफ्टी बढ़ना चालू हो गई, अगर निफ्टी बढ़ना चालू हो गई, तो आपको कॉल, ये जो 17,400 वाला कॉल यहां पे लिखा हुआ है मैंने, ये 17,400 वाला कॉल का रेट बढ़ना चालू हो जाएगा। हालांकि आपको निफ्टी में लॉस हो रहा होगा क्योंकि आपने शॉर्ट पोजीशन करी हुई है, लेकिन उतना ही लॉस आपको प्रॉफिट में दिख रहा होगा अपने बाय की, कॉल के बाय ऑप्शन की रेट में। तो आपकी पोजीशन क्या हो गई, हेज हो गई। आपने अपना लॉस जो है फ्रीज कर लिया। आज आपका 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, आपने 189 रुपीज का ये खरीद लिया, तो 200 माइनस 189, 11 रुपए फिक्स्ड लॉस हो गया। फिक्स्ड लॉस, सॉरी 11 रुपए इस केस में आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो 11 रुपए फिक्स्ड प्रॉफिट हो गया। निफ्टी चाहे कल को 20,000 हो जाए, आपको 1 रुपया ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, 11 रुपए आपके प्रॉफिट है, आपकी जेब में आ जाएगा। लेकिन नीचे अगर जाती है निफ्टी तो अनलिमिटेड प्रॉफिट जो आपको होना चाहिए, क्योंकि आपने शॉर्ट पोजीशन की थी, तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं उस पोजीशन को। हमने कॉल ऑप्शन को डिस्कस किया है आज दोनों तरीके से। एक तरफ हमने पोजीशन एग्जिट करके मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स को सीखा है, किस तरीके से हम कॉल को यूज करके मैक्सिमाइज कर सकते हैं हमारे प्रॉफिट्स को। दूसरी तरफ हमने ये भी सीखा कि किस तरीके से शॉर्ट पोजीशन में बने रहने के बावजूद हम हमारे लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर मार्केट वहां से रिवर्स ट्रेंड में चली जाता है तो हमारे फेवर में चल रहा है मार्केट अभी, लेकिन अगर रिवर्स ट्रेंड में चले जाए शॉर्ट के केस में, तो हम किस तरीके से कॉल को यूज करके हमारे प्रॉफिट्स को फ्रीज कर सकते हैं, लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। ये हमने आज सीखा। अब सिर्फ 5 मिनट्स बचे हैं आज के सेशन में। आई विल टेक योर क्वेश्चन एंड आंसर। आई एम जस्ट ओपनिंग अनदर स्लाइड व्हिच आई जनरली लाइक टू शेयर ऑन ऑल माय सेशंस। Please always keep these golden rules in your mind. Whenever you are investing in stock market, please invest wisely. Long-term consistent profits are better than your short-term gains. Always remember that. Don't invest on someone's advice blindly. Ask questions that why that person is telling you to invest. There should be some logic. There should be some fundamental reason or technical reason. आजकल मार्केट में बहुत लोग आ गए हैं जो आपको टिप भेजने लग गए हैं। देखिए, ध्यान रखिए, टिप उसको दी जाती है जिसको आप खाना खाने जाते हैं, जब रेस्टोरेंट में उसको टिप दी जाती है। आप उस लेवल पे मत जाइए, अपने आप टिप मत लीजिए। तो आस्क अबाउट रिकमेंडेशंस, डोंट आस्क अबाउट टिप्स। Okay, then have patience, don't panic and follow your rules genuinely. आपने अगर कोई टारगेट्स फ्रीज डिसाइड कर रखे हैं, आपके टारगेट्स हैं कि मैं 10% इन्वेस्ट करके एग्जिट कर जाऊंगा 3 महीने में, अगर मुझे 10% का रिटर्न मिलता है, इट्स मोर एंड insufficient for me. Please do that. Always follow your rules. They will help you in long run rather than short run. Okay, these are the profit mantras which you should continue to follow throughout your life. And now I will
open the forum for question answer session. Before answering any questions, I'm again giving you a disclaimer. I am a chartered accountant. I can advise you based on my experience and knowledge. However, I am not registered with SEBI. So please take advice from your investment advisor as well in case you have any specific questions related to your risk profiles. But over to you now. आप में से किसी के भी पास अगर क्वेश्चन है तो प्लीज आप अपना रेज हैंड कर सकते हैं या फिर आप अनम्यूट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर विशाल। हेलो विशाल जी। सर मेरे को शॉर्ट कितने टाइम तक हम होल्ड कर सकते हैं, मेरे को ये नहीं आइडिया, मैंने कभी शॉर्ट किया नहीं है। एक ही दिन में करना होता है या हफ्ता रुक सकते हैं? शॉर्ट की पोजीशंस फ्यूचर्स में 3 महीने की एक्सपायरी होती है इंडिया में एज फार एज स्टॉक मार्केट इज कंसर्न। मैं कमोडिटी मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं, करेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पे डिफरेंट एक्सपायरी है। एज फार एज स्टॉक मार्केट इज कंसर्न 3 महीने की एक्सपायरी होती है। फॉर एग्जाम्पल करेंटली आप सितंबर 30 का भी कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट कर सकते हैं, अक्टूबर का भी शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नवंबर का भी कर सकते हैं। लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ is the fixed date on which the contract will be expiring. तो आप अगर एनएससी की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको एक्सपायरी डेट्स दिखना चालू हो जाएंगी, आप वहां से देख सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन आप जितने समय चाहें कर सकते हैं। रोलिंग ऑफ शॉर्ट पोजीशंस भी एक ऑप्शन है जो आप कर सकते हैं। अगर आपने अभी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम नहीं किया है तो पहले प्लीज फ्यूचर्स को सीखें, उसके बाद ही शॉर्ट करें। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। Anybody else has any questions? Please unmute yourself in case you want to ask any questions, or you can send your question to me in the chat window. सर एक क्वेश्चन और था, आपने स्टार्टिंग में ये बोला था कि हम सेबी का कोई रूल आया, वो पुट ऑप्शन से रिलेटेड था क्या? सिर्फ जो आप कह रहे थे कि हमें बिना सपोर्टिंग बाय के हम नहीं पुट कर सकते, वो पुट के लिए था या वैसे जनरल था, कॉल भी नहीं कर सकते हम? कॉल और पुट को सेल करने के लिए वो रूल आया है, बाय आप कभी भी कर सकते हैं। सेल करने के लिए आपको शेयर्स होना चाहिए आपके अकाउंट में। ओके, ठीक है सर। And there are some other combinations also in which you can sell, but अभी सेल के ऊपर बात नहीं करी हमने, आज सिर्फ बाय के ऊपर बात करी है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। एक क्वेश्चन आया है, somebody has sent me a question saying I'm intentionally not taking names because somebody has sent me it privately. So, can you advise on investment in IEX? IEX is, I guess, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की बात हो रही है यहाँ पे। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके मेरा एनालिसिस बता देता हूँ। We have got limited time, so I will do it very quickly. IEX चार्ट्स पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आप बाय कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर आपने बाय नहीं किया है तो एंट्री कर सकते हैं। अगर आप होल्ड करके रख रहे हैं ऑलरेडी शेयर्स तो आप बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें। ये शेयर अगले 1 से 2 साल में डबल होने के पूरे चांसेस दिख रहे हैं एज पर चार्ट्स। मैंने फंडामेंटली अभी इसको रिसर्च नहीं किया है, प्लीज मैंने क्विकली आपको टेक्निकल एडवाइस दी है। फंडामेंटल बेसिस पर आप प्लीज अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से या फिर मुझसे सेपरेटली बात करें और मैं आपको रिसर्च करके बता दूंगा।